BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. بلوچستان میں پرامن انتخابات کو ممکن بنانے کی کوشش میں نگراں وزیر اعظم دارالحکومت کوئٹہ پہنچے ہیں. انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں سزائے موت کے رجحان میں کمی نظر آئی ہے. برطانیہ نے صومالیہ جیسے جنگ زدہ علاقوں میں جنسی تشدد روکنے کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے. کراچی میں پرامن انتخابات کرانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں نو گو ایریاز ختم کیے جائیں. اسی سلسلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو دی گئی آج کی ڈیڈ لائن کو بڑھا کر اب 16 اپریل کر دیا گیا ہے. کراچی کا علاقہ لیاری بھی ایک نو گو ایریا ہے. یہ علاقہ ایک عرصے گینگ وار کی زد میں رہا ہے اور یہاں اب بھی پولیس کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری نامہ نگار سبین آغا نے کراچی کے اس نو گو ایریا میں قدم رکھا. یہ تنگ و تاریک گلیاں کراچی کے علاقے لیاری کی ہیں. پولیس کے مطابق ان گلیوں کے اندھیروں میں جرم پھلتا پھولتا ہے. کچھ لوگ یہاں کی پسماندگی کو جرائم بڑھنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. رحمان ڈکیت گروپ اور ارشد پپو گروپ about 20% آف لیاری اس کے اندر یہ گینگ وارفیئر چل رہی تھی اور یہ آمنے سامنے ہوتے تھے. they had their defined boundaries اور ایک دوسرے کے علاقے میں کوئی جاتا تھا they used to kill them. they were brutal. لیاری گینگ وار کے پہلے مرکزی کردار رحمان بلوچ 2008 میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے، جبکہ ارشد پپو بھی گزشتہ دنوں مخالف گروہ سے تصادم کے دوران ہلاک ہو گئے. مگر کیا ان دونوں کی ہلاکت سے گینگ وار ختم ہو گئی؟ یہ سردار عزیر بلوچ ہیں جنہیں پولیس گینگسٹر سمجھتی ہے. پولیس کے مطابق عزیر بلوچ کا تعلق لیاری کے رحمان بلوچ گروپ سے ہے. اگر ہم ان چکروں میں ہوتے ہیں یا بطہ خوری یا منشیات یا جوؤں میں تو ہم لوگوں کی خدمت نہیں کرتے، نہ ہم ہاسپٹلوں پہ توجہ دیتے تھے، نہ ہم اسکولوں پہ توجہ دیتے. جس طریقے سے ایجوکیشن میں ہم کم کر رہے ہیں. لیاری میں جوئے کے اڈے ہیں پولیس والے کہتے ہیں. دیکھو اس میں پولیس والے کہتے ہیں تو پولیس والوں کا کام ہے اس کو بند کرنا نا. مگر کیا پولیس لیاری میں جا سکتی ہے یا وہ ان کے لیے نو گو ایریا ہے؟ یہ لیاری کی افشانی گلی ہے جہاں گینگ وار کے سابقہ مرکزی سرغنہ رحمان بلوچ کا گھر ہے، اور یہ پول اسی گلی میں لگی آہنی رکاوٹ کی باقیات ہیں. پولیس کے مطابق یہ آہنی بیریئرز دراصل ان کا اور علاقے میں دوسرے لسانی گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. وہ تنگ گلیاں ہیں، ان میں ہماری پولیس کی موبائلز نہیں جا سکتی، ان میں ہمارے موٹر بائک پیٹرول نہیں جا سکتے. ان تنگ گلیوں کا ان کی اپروچ کا فائدہ اٹھا کے کرمنل ایلیمنٹس وہاں پہ آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور چونکہ ان کے خلاف وقتاً فوقتاً کارروائی نہیں ہوتی تو وہ اتنا اسٹرینتھن کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. اگر پولیس کی ایک موبائل وہاں پہ جائے یا 5-6 پولیس آفیسر جائیں تو وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. کراچی پولیس نے لیاری کے نوگو ایریا میں کئی مرتبہ آپریشن کیے، جن میں 2011 کا چیل چوک کا بے نتیجہ آپریشن بھی شامل ہے. 8 روز تک جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ لڑائی کے بعد اچانک پولیس نے آپریشن ختم کر دیا، جس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی. اس واقعے سے ایک مرتبہ پھر لیاری کا پولیس کے لیے نو گو ایریا ہونے کا تاثر ملا. SSP اسلم خان اس کی تردید کرتے ہیں. پولیس نے اپنے جو ٹارگیٹس تھے اس میں سے کافی ٹارگیٹ اچیو کر لیے تھے، جس میں سے ہیڈ منی والے بھی پکڑے گئے تھے. 20 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کچھ 30-40 لاکھ کے ہیڈ منی والے پکڑے گئے تھے. 65 لوگ پکڑے گئے. مبصرین سمجھتے ہیں کہ لیاری کو نوگو ایریا بنانے کی اصل ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں. ایک طرف سیاسی سرپرست ان علاقوں پر اپنی جو برتری ہے سیاسی اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف جرائم پیشہ گروہ وہ اپنے عملداری بڑھانے کے لیے دوسرے علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. مگر پولیس کے مطابق صرف لیاری ہی کراچی کا نوگو ایریا نہیں، بلکہ عدالت میں دی گئی رپورٹ کے مطابق شہر میں 42 مقامات ایسے ہیں جہاں پولیس نہیں جا سکتی. جہاں تک لیاری کا تعلق ہے تو لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار رحمان بلوچ اور ارشد پپو دونوں اب دنیا میں نہیں رہے، مگر یہاں گینگ وار ختم نہیں ہوئی.
लियारी में रहमान बलोच के जानशीं समझे जाने वाले उज़ैर बलोच की आहनी गिरफ्त का अंदाज़ा यहाँ की सड़कों पर होता है। ऐसे अनासर की शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इजारादारी ही दरअसल इलाके को इंतज़ामिया के लिए नोगो एरिया बनाने में मुअव्विन बनती है। सबीन आगा, BBC न्यूज़, कराची। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिसर्च एसोसिएट सोबिया काकर, और कराची से बराह रास्त हमारे साथ हैं BBC के नामा निगार शाहज़ेब जिलानी। पहला सवाल आपसे शाहज़ेब, जो ये ममनुआ इलाके हैं, ये जो नो गो एरियाज़ हैं, क्या इनमें कोई इंतखाबी मुहिम चलाई भी जा सकती है? देखिए, इस वक्त जो शहर का माहौल है और जिस खौफ के साए में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, अगर आप कराची की सड़कों पे जाएं, अगर आप टीवी नहीं देखते, अखबारात नहीं पढ़ते, तो आपको कुछ नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ज़ाब्ता अखलाक दिया गया है वो है, लेकिन खौफ जो है एक बड़ा एलिमेंट है। 3 बड़ी पार्टियाँ इस शहर की, पीपल्स पार्टी, ANP और MQM, वो निशाने पर हैं तालिबान की तरफ से। ANP और पीपल्स पार्टी ने बड़ी रैलियां नहीं की अब तक। MQM ने कहा है कि वो तालिबान की धमकियों से मरूब नहीं होंगे, वो अपने जलसे करेंगे, वो अपनी कैंपेन चलाएंगे। लेकिन ANP सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट पे है तालिबान के। उनके दफातर कई जगहों पे बंद हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो जलसे नहीं करेंगे, वो पैम्फलेट बांटेंगे, वो घर घर जाएंगे और इस तरह अपनी कैंपेन चलाएंगे। जी शाहज़ेब, सोबिया, ये नो गो एरियाज़ हैं, इनमें जो ये तकसीम है ये किन बुनियादों पे है? क्या ये लिसानी बुनियादों पर है या फिर फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर है या सिर्फ गैंग्स का मसला है? आलिया, कराची का जो नो गो एरियाज़ का है, आप नीटली डिवाइड नहीं कर सकते कि ये लिसानी बुनियाद है या पॉलिटिकल बुनियाद है या रिलीजियस बुनियाद है, क्योंकि ये सब मिक्स्ड हैं। अक्सर इलाके ऐसे होते हैं, जैसे कि सुल्तानाबाद भी एक नाम लिया गया है, उसमें PPP का वोट बैंक था वो लास्ट इलेक्शन के अंदर, मगर MQM वहाँ है, महाजर वहाँ है, वहाँ पश्तून हैं, वहाँ पे बलोच भी हैं, बहुत मिक्स सेटलमेंट है, बट नीटली आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो शाहज़ेब, जब पीपल्स पार्टी और MQM पिछले 5 साल में हुकूमत में होने के बावजूद इन एरियाज़ को ख़त्म नहीं कर पाई, तो क्या निगरान हुकूमत इतने कम वक्त में ऐसा कर भी सकती है? बज़ाहिर तो कोशिशें हो रही हैं, मतलब जब से पिछली हुकूमत गई है, कराची में जो आए दिन की हलाकतें थीं उनमें निस्बतन थोड़ी बहुत कमी आई है। रेंजर्स हरकत में आए हैं, रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, असलहा बरामद किया जा रहा है, मुश्तबा लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक ठोस मजबूत किस्म की कार्रवाई है या फिर ये एक सतही लेवल की एक दिखावे की कार्रवाई है। इस पर मुख्तलिफ आरा हैं। मुख्तसरन ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये हुक्म सादर किया जाता है कि जी के 7 दिन के अंदर तमाम नो गो एरियाज़ ख़त्म करें, ये कहना बहुत आसान है, अक्सर लोगों की राय में ये अमली तौर पर करना बहुत मुश्किल है। जी सोबिया, ये ममनुआ इलाके होते हैं, बज़ाहिर तो जो इन इलाकों से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी जो जमातें होती हैं, उनको नुकसान होता है। तो क्या PPP और MQM जो हैं उनको इन नो गो एरिया से कोई फ़ायदा भी है? एक्चुअली नो गो एरियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि वो बनते कैसे हैं, कैसे वो नो गो एरियाज़, क्या उनकी बुनियाद है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे अक्सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि वहाँ पुलिस जो है वो सॉल्व नहीं कर सकती क्राइम या इनसिक्योरिटी बहुत है रेजिडेंट्स के लिए। दूसरा ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो आम आदमी के लिए अप्रोचेबल नहीं है, इसलिए वो एक लोकल स्ट्रॉन्ग मैन के पास जाते हैं जो कि अक्सर यूनियन काउंसलर होता है। तो इस तरह से जब देखा जाए तो मोस्टली ये वोट बैंक्स बन जाते हैं कुछ एरियाज़ के लिए। तो जबकि इलेक्शन के टाइम पे लोग घर से निकलना मुश्किल समझते हैं, ऑन दी अदर हैंड उनकी लॉयल्टीज़ बहुत सख्त तरीके से ख़रीद ली जाती हैं। प्रोटेक्शन रैकेट्स भत्ता की वजह से लॉयल्टी ली जाती है, उसके अलावा उनको घरों की इंटाइटलमेंट के लिए भी उनकी एक तरह से समझ लें कि लॉयल्टी ली जाती है। तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। तो जब तक बज़ाहिरन आपको लगेगा कि जो सियासी जमातें हैं वो उनको नुकसानदेह हैं ये नो गो एरियाज़, दूसरी तरफ ये भी है कि उनको फ़ायदा भी है। जी, और जो इक़्तिसादी भी तो इसका एक असर है जो कराची पर और मुल्क की मईशत पर भी पड़ता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इकोनॉमिकली भी बहुत ये पाकिस्तान के लिए इकॉनमी के लिए बुरा है। तकरीबन 2 बिलियन
तकरीबन 2 बिलियन रुपीस का डॉलर्स का लॉस होता है पर डे जब स्ट्राइक्स होती हैं, राइट्स होती हैं, क्योंकि कराची की इकॉनमी इतनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी जी। और शाहजेब, बहुत मुख्तसर, क्या एक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन भी हैं कराची में इस सूरत हाल में? बहुत मुश्किल नज़र आता है। जहाँ तक आज़ादाना का ताल्लुक है तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ उम्मीदवार खुलकर कैंपेन ना कर सकें तो कैसे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। जहाँ तक मुनसिफाना का ताल्लुक है तो ये हमें मानना पड़ेगा कि पहली मरतबा मुल्क में एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप है, आज़ादाना इलेक्शन कमीशन है और उनके तहत इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो धांधलियाँ अमूमन तौर पर निचले लेवल पर होती हैं वो शायद दोबारा भी होंगी। जी, कराची से शाहजेब जिलानी और यहाँ लंदन में सोबिया काकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन नो गो एरियाज़ के बारे में हमारे नाजरीन क्या कहते हैं? इरम, हमने अपने क़ायरीन से पूछा कि आपके ख़्याल में कराची के नो गो एरियाज़ कौन ख़त्म कर सकता है। काफ़ी लोगों के ख़्याल में ये काम सिर्फ फ़ौज कर सकती है, लेकिन इसके बरक्स रिजवान यूसुफ का इस्लामाबाद से लिखना है कि फ़ौज या रेंजर्स मसले का मुस्तकिल हल नहीं। पुलिस को हर इलाके और वहाँ होने वाले जराइम का मुकम्मल इल्म होता है, इसलिए जब हुकूमत इख्तियारात अहल और दयानतदार अफसरान को सौंपेगी तो वो अमन कायम करके दिखा देंगे। जबकि जवाद आफरीदी का कहना है कि हमारी पुलिस किसी काम की नहीं मां सिवाय रिश्वत लेने के। इस इदारे को ख़त्म करना होगा, बस यही एक हल है। जबकि ZM कादरी का इस बारे में कहना है कि कराची के नो गो एरियाज़ में पुलिस ने क्या बिलावल हाउस और 90 के इलाके शामिल किए हैं? अगर नहीं किए तो आप कर लें। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद हमारे हफ्तेवार सिलसिले क्लिक में देखिएगा कि इंटरनेट किस तरह सयाहों की रिवायत से ज़रा हटकर सैर करने की जगहें ढूंढने में मदद कर रहा है।